Good morning, students. From the last two lecture, we are talking about the historiography. What do you mean by historiography? The writing of the critical historical narrative. Narrative means मुंह से ज़बानी बोला गया हुआ ऐतिहासिक उस चीज़ को पेपर्स में उतारने को historiography हम लोग बोलते हैं. There are objectives of writing history also. Historical research methods and the stages of historiography, that also we come to know about that. We came to know about the historiography in the medieval period, historiography in the modern period also. See here, we are talking about the tradition of the historiography. Then afterwards we were talking about the modern historiography. What are the modern historiography? Its method is based on the scientific principles. It begins with the formations of the relevant questions, means related to that topic. These questions are anthropocentric, that means the questions based on the members, deeds of the members. मतलब उनकी अपनी उस वक्त के लोग जो थे वो क्या करते थे, डिपेंड्स ऑन दैट डीड्स एंड द एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड. उस टाइम के पर्टिकुलर पीरियड में जो लोग करते. Anthropocentric means that the center around the man and his activities in ancient society. उनका अपने बारे में, व्यक्ति के बारे में, उनकी एक्टिविटी जिस दौरान वो रहते थे ड्यूरिंग दैट पीरियड, उनके बारे में सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती थी. Development of the scientific perspective in Europe, that also we came to know. Now we were talking about we completed René Descartes. He was born on 1596 and died in 1650. He was the foremost and among the scholars who insisted of verifying the reliability of the historical documents. मतलब documents जो प्रिजर्व किए थे उसको जांचना परखना, whether it is truth or not, that उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकल एग्जामिनिंग दम, उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करने का सबको ये किया कि उसको भी जस्टिफाई किया जाना चाहिए. जो हमें हिस्ट्री हमें सुनाई जा रही है, बताई जा रही है, वेदर दे आर ऑथेंटिक और नॉट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेयर. Voltaire original name is the Francis Mario. That also we learned in the last lecture. He was a French. He opined that along with the objectives truth and chronology, the historical events considering social tradition, trade, economic, agriculture was also equally important in historiography. मतलब historiography में it is quite necessary to know the historical events also, the social traditions, मतलब उस तरह के traditions जो थे, trade also, trading also, economic condition of that particular period, the agriculture done during that period are also equally important for historiography. सिर्फ इतिहास ही जानना ज़रूरी नहीं था, फिर इसके अलावा वहाँ के लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंस, देयर एग्रीकल्चरल, देयर सोशल, देयर ट्रेडिशन, ट्रेडिंग पर्पसेस, एवरीथिंग शुड बी स्टडीड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक Eagle, that is he born in 1770 and died in year 1831. Eagle was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in the logical manner. मतलब whatever the historical reality we are having, that should be presented in the logical, मतलब उसमें लॉजिक होनी चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए ना, and it should be presented in a logical manner. To him, the timeline of the historical events are indicative in progress. He also thought that the presentation of the history is bound to change over time as new evidence would come forth. Naturally, the changes will drastically come. जो हम लोग सुनाई देते, जो हम लोग को पता था, वो naturally it goes on changing, because जैसे ही आगे years passes, there are many things can be brought out in the highlight.
उसको और डीप स्टडी किया जाता है, फिर और नई सच्चाई, नई कहानी हमें सुनाई देती, तो नेचुरली इट गोes on changing as the evidence comes forward. With the Eagles philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not a lesser quality, though they differed from scientific method. मतलब साइंटिफिक मेथड से भले ही ये हो, लेकिन वो अलग नहीं है, कुछ कम नहीं है, इक्वली टू द साइंटिफिक मेथड्स. were convinced that historical methods were not of lesser quality, मतलब उसको कोई लेसर, उसको कोई कम हाँका नहीं जा सकता है कि वो हिस्टोरिकल मेथड से ही किया गया. एंड नॉट ए लेसर क्वालिटी दो दे डिफर फ्रॉम द साइंटिफिक मेथड, वो भले ही कितना ही साइंटिफिक मेथड से भले ही अलग हो, विपरीत हो, पर उसको कम हाँका नहीं जा सकता है. द कलेक्शन of his lectures and the articles is published in a book entitled Encyclopedia of the Philosophical Science. Okay, he wrote a book that is called Encyclopedia of the Philosophical Science. His book Reason in History is well known. उनका बुक जो है Reason in History is बहुत ही प्रचलित है. It's known to all. Now see here what it is. It is good to know this. According to the Hegel, grasping the meaning of any event happens in the terms of two direct opposites. Human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposites. For the example, true, false, good, bad, etc. In order to understand the true nature of the thing, one needs to know both true and false. That's true. कभी कुछ भी चीज़ जानना है तो उसके दोनों पहलू हमें जानना की ज़रूरत होती है. तो Hegel said the same things. किसी चीज़ को हमें जानने के लिए, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, किसी इवेंट के बारे में जानना, तो वी हैव टू नो द टू साइड्स ऑफ दैट इवेंट. ह्यूमन माइंड क्या कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द इवेंट. इंसान को कभी कभी समझ भी नहीं आता उसका सच पार्ट क्या है. तो इट इज़ क्वाइट नेसेसरी टू नो द टू बोथ द पार्ट्स ऑफ द ट्रू पार्ट एंड ऑल्सो द false part, good or bad. To understand, to order to understand the true nature of being thing, one needs to know the both true and false. Similarly, good or bad. This method of analysis, which is based on the opposites of known as dialectics. In this method, a theory is proposed at the beginning, which is called thesis. Then another theory is proposed, which is contrary to the thesis. It is called antithesis. After through a logical discussion of both, the new thesis is proposed, which includes the gist of both the thesis and the antithesis. This process of arriving of the new thesis is called a synthesis. Okay, मतलब ethics thesis and the antithesis, ये दोनों अलग अलग हिस्सा है. वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ द थिंग्स. उसके ऊपर भी रिसर्च वगैरह किए गए, इंक्लूड्स द प्रोसेस वगैरह किया गया था. एंड उसके बाद ये उसको सिंथेसिस हम लोग इसको नाम से जानते हैं. ओके, व्हाट इज दिस, व्हाट इज जॉर्ज विलियम्स फ्रेडरिक्स थिंग, व्हाट ही मेंशन, दैट इज हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मेथड. The order of the historical events are indicative of the progressive. Over a period of time, the presentation of the history are definitely changing because new evidence came forward. That's why we can come to know more things about that past events. So, in order to understand the true nature of the things, one needs to know both the sides, that is true or false or good or bad. दोनों चीज़ हमें जानना चाहिए, तब जाके हमें असलियत पता चलता है. दैट इज़ व्हाट ही मेंशन. दिस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ द हिस्ट्री विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑपोजिट्स इज नोन एज द डायलेक्टिक्स. ओके, हियर इज बेस्ड ऑन द ऑपोजिट्स ऑफ द डायलेक्टिक्स, मतलब दोनों तरफ की जानने के बाद दैट इज नोन एज टू बी अ डायलेक्टिक. ए थियरी इज प्रपोज्ड एट द बिगनिंग कॉल्ड थीसिस. ओके, बिगनिंग जो ये थियरी फॉर्म किया गया था, मेथड ऑफ थियरी, तो दैट इज थीसिस. द अनदर थियरी इज प्रपोज्ड इन द contrary of the thesis, it is called as antithesis. Finally, after through the discussion on both a new thesis, दोनों न्यू thesis के ऊपर डिस्कशन होने के बाद, having the gist, मतलब दोनों का निचोड़ निकालने के बाद हमें क्या मिला, दैट इज कॉल्ड एज ए सिंथेसिस.
Now, Leopold von Ranke, born on 1795 and died at 1886. Historiography of the 9th century was greatly influenced by the thoughts of the Leopold von Ranke of the Berlin University. He spoke about the critical method of historical research. उन्होंने अपनी बातचीत में उन्होंने बताया कि एक स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में उन्होंने बहुत जानकारी मतलब बताई लोगों को. ही पुट द एम्फोसिस ऑन द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. यानी उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिखाया कि थ्रू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उन्हें उसके पर रोशनी डाली. पुट एम्फोसिस ऑन द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड किया गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में उन चीज़ के पर उन्होंने काफ़ी जोर डाला. ये ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामिन. जो भी whatever the things we come to know through this from the history and all, that all documents should be should be examined properly with the greatest care. जो भी उसको एग्जामिन करना है उसको बहुत बड़ी ही ध्यानपूर्वक से उसके बारे में जानकारी और अच्छी तरह से उसको एग्जामिन करना चाहिए. That was his thinking. He believed that with this method it is the possible to reach the historical truth. अगर हमने ठीक से जांच परख किया तभी हम जाके सच्चाई तक पहुंच सकते हैं. इतिहास में जो घटा है whatever has happened in the few past, the truth of that things will come to know if we properly analyze and examine that whatever documents we are having related to that event, whether they are true or false. He criticized imaginative narrations of the history. Collection of this article is published in the 2 books entitled The Theory and the Practice of History and the Secret of the World History. He criticized imaginative narration. मतलब he didn't like the imaginative because कुछ भी जब हम मुंह से बोलते हैं that time वो चीज़ सच्चा है नहीं. We can't say that because when we speak to another the things goes on changing. तो उसमें सच्चाई बहुत कम रह जाती है क्योंकि काफ़ी सारी इमेजिनेटिव बातें उसमें डाली जाती है. हर एक इंसान अपने अपने तौर पे उसे बताता है, दर्शाता है. तो we can't rely on it all narrative which has been spoken about the history. तो ये totally criticized this. उनके हिसाब से क्या है, we have to examine the truth, whatever we have heard, we have got, whatever the things we got as an articles, it should be well examined and well proved that it is correct. Then only you should accept that things. The Theory and the Practice of History and the Secret of the World History. उन्होंने 2 आर्टिकल्स पब्लिश किए थे. टाइटल्स आर द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द कार्ल मार्क्स. In the later half of the 19th century, a new school of thought arose to keep in view a new thesis formulated by Karl Marx. मतलब नए 19th सेंचुरी में नए थॉट्स आए गए, नए स्कूल में इम्प्लीमेंट किए गए. कीपिंग द व्यू ऑफ न्यू थीसिस, नए थीसिस जो कार्ल मार्क्स ने बनाए थे उसके ऊपर और 19th सेंचुरी में ये सब बातें स्कूल में बताई जा रही थी. केम टू नो. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas. It is not about the living people. It was about the living people. Human relationship was shaped by the fundamental needs of peoples and the ownership as well as nature of relevant means. मतलब what do you want to say? ये सिर्फ एक हिस्ट्री मतलब एक कहानी नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, बट इट इज़ अबाउट द लिविंग पीपल, जिंदे लोगों के बारे में जानकारी है. ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप इन द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल. वुमेन्स रिलेशनशिप भी इसमें ये किया गया है उनकी अपने ज़रूरतों के हिसाब से. एंड द ऑनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ रिलेवेंट मीन्स एंड द प्रोडक्शंस ऑफ मीट दोज नीड्स. The accessibility of this means to different strata of the society may not be equal. This inequality causes a division of the society into classes leading to class struggle. यानी सबका सोच एक जैसा ना होने की वजह से क्या the two side begin to clash होता है. इनइक्वालिटी हो जाती है उनकी सोच में. उनकी हर एक का सोच अलग अलग होता है तो अलग अलग सोच का हमेशा क्या होता है उससे थोड़ी बहस वगैरह छिड़ जाती है.
तो इट हैपन्स दिस इनइक्वालिटी कॉजेस डिविजन्स ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस, इसकी वजह से क्या है डिवीजन हुआ इनटू क्लासेस, लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल, जिसकी वजह से बहस होने की वजह से दोनों क्लास के बीच में या स्ट्रगल मीन्स बहस छिड़ जाती है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल ऑन as a class that owns the means of production, economical exploits the rest of the classes. Das Kapitala, a treatise written by him in most referred book all over the world. उनके हिसाब से क्या है, वुमेन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल, इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ए क्लास स्ट्रगल, मीन्स एक क्लास एक वर्ग का स्ट्रगल जो है, एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, जिसका अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते थे द रेस्ट ऑफ द क्लासेस, जो अपने से थोड़ी नीचे इसके क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे या उसको उनका फ़ायदा उठाया था। दैट इज़ ऑल इट इज़ मैंशन। दास कैपिटला, द ट्रीटिस रिटन बाय हिम, इज़ द मोस्ट रिफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। दास कैपिटला में उसमें काफ़ी सारे उन्होंने बात बताई है। Now it is analyzed school. At the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France. Okay, एक नया स्कूल फॉर्म किया related to historiography in France, which is known as a analyzed school. Analyzed schools gave a new direction to history writing. It gave the new direction. एक अलग सा पहचान उन्होंने इसमें दिया है analyzed school में। It was recognized now that history is not only just about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and other collective psychological history. Means in this school they came to know it is not just a political event. मतलब ऐसा नहीं कि इतिहास में सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स ही सब कुछ है, राजा महाराजा ग्रेट लीडर्स और उनकी पॉलिटिक्स का ही रिलेशन नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है। दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, लोकल पीपल स्टेइंग ओवर देयर, द एग्रीकल्चर, द ट्रेड, द टेक्नोलॉजी, मीन्स कम्युनिकेशन, एवरीथिंग। सिर्फ राजा महाराजा या उनकी वॉर से रिलेटेड ही नहीं है, बट इट कंटेन्स ऑल दिस थिंग्स, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये सब सारे चीज़ें भी हमें जाननी चाहिए। अबाउट द क्लाइमेट, अबाउट द लोकल पीपल्स, द एग्रीकल्चर, द ट्रेड टेकन इन बिटवीन द कंट्रीज और इन बिटवीन द स्टेट्स, वॉट एवर technology also, means of communication, what the means of communication was there during that period, even the social divisions and their collective psychological humans, लोगों की psychology जो है, etc. in the historical times. The analyst school also started by the French historian. It was started by the French historian. It was started in France only, and it was started by the French historian. एक फ्रेंच हिस्टोरियन के हाथों ये शुरू की गई थी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नाउ लेट्स सी व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, यानी एक औरत के नज़रिए से कैसे रेस कंस्ट्रक्ट वगैरह किया गया, स्ट्रक्चरिंग वगैरह, उसका रिस्ट्रक्चरिंग एक औरत की नज़र से कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर दैट इज़ कॉल्ड एज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। द राइटिंग्स ऑफ द सिमोने डी ब्यूवर हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द फेमिनिज्म। शी वॉज द फ्रेंच, ओके, शी वॉज अ फ्रेंच वन। द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी emphasized not only on the inclusions of women in history but also the rethinking of the male dominated perspective of the history. यानी इसमें सिर्फ क्या है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में एम्फोसाइज नॉट ओनली द इंक्लूजन ऑफ वुमेन, women's were also involved in the history. So this shows the involvement of women's as well as it shows the rethinking of the male dominated, मतलब मेल्स क्या करते थे, डोमिनेट करते, मीन्स औरतों के ऊपर हावी होते थे, मतलब अपने ऊपर सारा चीज़ अपने इसमें लेते थे, औरतों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। दे वर डोमिनेटिंग द फीमेल्स। तो it is all mentioned over this in feminist historiography. It draw historical research to the focus in depth on various aspects of the women's life. इसमें क्या है, इस historiography में वुमेंस के बारे में उनके वेरियस एस्पेक्ट, वुमेंस के वेरियस एस्पेक्ट, नज़रिया, एवरीथिंग वुमेंस लाइफ के बारे में इसमें दर्शाया गया है, सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि उनके एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन, उनका अपना योगदान ट्रेडिंग में,
इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉसेस, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो औरतों के लिए काम किया करते थे। देयर फैमिली लाइफ, उनके अपने पर्सनल फैमिली लाइफ एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें जानने को हमें मिलता था। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 वुमेन्स वे आर पोर्ट्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। 1990 के बाद वुमेन्स को एक अलग से नज़रिए से देखा जाता था, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास को। पहले उनको हमेशा यही माना जाता था क्योंकि औरत मर्दों पे निर्भर है, तो उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। पर इन सब इस जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी आने के बाद से उनकी अपनी औरतों की पहचान होने लगी, उनका अपना रोल इतिहास में, अपने घर में, अपने ट्रेडिंग में, उनके एम्प्लॉयमेंट में, उनके अपनी सोच, एवरीथिंग वॉज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। नाउ इट इज माइकल Foucault, 1926 and 1984, the French historians of the 20th century. Michael Foucault brought forth a new concept in historiography. Now he brought a new concept, एक नया concept उन्होंने historiography में लाया। In his book Archaeology of Knowledge, argued that prevailing practice of arranging historical event in the canonical order is not right. उनके हिसाब से उनकी नॉलेज में it is mentioned in this book Archaeology of Knowledge, that is the book of him. इसमें उन्होंने ये किया है प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग द हिस्टोरिकल इन क्रॉनिकल ऑर्डर, मतलब जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो क्रॉनिकल ऑर्डर्स मीन्स इन द सीक्वेंस वन बाय वन बैक टू बैक, इज नॉट राइट. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transitions of the past. मतलब वो हिस्टोरिकल ट्रूथ हमें नहीं बताता बल्कि उनके ट्रांजेक्शन एक के पीछे एक जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में ही है. Foucault felt that explaining the transition in history is more important. उनके हिसाब से ट्रांजिशंस इन हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी था, जबकि एक दूसरे के मतलब सीक्वेंस में जाने से उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है. He called this method as a archaeology of knowledge. Foucault subjected that the so far unacknowledged areas of historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. in the historical events. Okay, what do you wanted to mean? वो चाहते थे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो भी उस वक्त हिस्टोरियन सच एज साइंस ऑफ मेडिसिन, ये प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिजन से ड्यूरिंग द किसी अगर लीडर्स को अगर जेल में डाला जाता है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इज टाइप टू बी एनालाइज्ड, शुड बी नोन. Thus the scope of historiography kept continuously expanding. यानी हिस्टोग्राफी कम्प्लीटली कीप ऑन एक्सपैंडिंग, मतलब हर एक अलग अलग लीडर्स लोग आते थे, अलग अलग लोग हिस्टोरिक से जुड़े हुए लोग वो अलग अलग पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट्स लेते थे, एक टॉपिक लेते थे, उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती थी और उसको बढ़ावा दिया जाता था. उनको लगता है कि सिर्फ इतिहास में मतलब सिर्फ राजा महाराजा तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लैंड से, वहाँ एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, पर हर एक चीज़ की स्टडी होनी चाहिए टू नो द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ दैट. तो हिस्टोरियोग्राफी इज़ दैट थिंग दैट कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, एवरीथिंग इज़ एनालाइज, हर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उसके हर एक छोटी छोटी बारीकियों को ये करके उनको स्टडी की जाती थी. हर उससे इसकी वजह से क्या हुआ, हर एक क्षेत्र में एक्सपैंड होता गया, हर एक चीज़ हमें जानकारी हमें मिलने लगी. Thus the scope of the historiography kept continuously expanding. इस तरह धीरे धीरे हिस्टोरियोग्राफी का जो दायरा था वो धीरे धीरे बढ़ता गया. राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म एंड केम इनटू प्रैक्टिस. यानी इसके बारे में भी लोग जानने लगे कि लिटरेचर क्या था, व्हाट आर द आर्किटेक्चर्स, व्हाट आर द स्कल्पचर ड्यूरिंग द पीरियड्स एंड एंशिएंट पीरियड्स, the drawing and paintings done during that time, the music which was liked by that people. यानी हर एक ईयर्स में, हर एक इसमें इवेंट्स में, हर एक राजा महाराजा जो भी काल हो, जो भी हिस्ट्री हो, इतिहास से जो घटता है, उनका अपना अपना उस वक्त में क्या क्या चेंजेस थे, क्या क्या चीज़ें होती थी, दैट ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन द हिस्टोरियोग्राफी. ये सब धीरे धीरे हमें इस स्टडी से हमें जानने लगे.
तो एक्सपेंशन काफ़ी हद तक, बहुत हद तक हम लोग को एक्सपेंशन हुआ है इस हिस्टोरियोग्राफी के दौरान. ओके, दिस आर सम ऑफ द लीड people who made the historiography vast and come to know about the many things, many aspects of the histories and all traditions, everything almost covered all the sections over the history related to history, and that's what we can see a vast changes, vast difference, vast expansion of the historiography. यहाँ पे हम अपना लेसन ख़त्म करते हैं. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.